Good morning, everybody. Welcome to online classes of Lal Public School. I am Pooja Sharma, your science teacher. And today we will start a new chapter of science, that is chapter number 6, and chapter name is Rocks and Minerals. What we learn in this chapter? In this chapter, we will learn about types of rock, that is igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Clear? Then we discussed about minerals and uses of rocks and minerals. Clear? Now first we discuss what is the difference between rocks and minerals. Okay, इस चैप्टर में हम rocks and minerals के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So first हम उनमें difference देखेंगे कि rocks and minerals में क्या difference है. Okay, so rocks are the solid substance which may have a combination of more than one minerals. Okay, जो rock हैं वो solid substance होते हैं and एक से ज्यादा जो minerals हैं उनके combination से made up of होते हैं. Okay. And minerals, these are inorganic substance that occur naturally. Okay, and ये inorganic substance, okay, इनमें जो carbon compound है वो absent होता है. Okay, and it's occur naturally. Rocks do not have a definite chemical composition. Okay, जो rocks होती हैं उनका कोई भी fixed chemical composition नहीं होता. Okay, because it's depend on minerals, है ना, किन minerals से मिलकर वो बनती हैं and कितना उनकी quantity है. So इसका जो composition है वो fix नहीं होता है, definite नहीं होता है. But minerals have a definite chemical composition. Okay, but जो एक particular mineral है उसका जो chemical composition है वो definite होता है. Now, rocks are mainly classified as igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Okay, these are types of rock. तो mainly जो rocks हैं उन्हें 3 types में classified किया गया है, that is igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. And minerals are classified as metallic and non-metallic. Okay, जो minerals हैं उन्हें हम metallic and non-metallic 2 types में हमने differentiate किया है. Now, marble, slate, and limestone are examples of rocks, and iron, aluminium, and calcium are some examples of minerals. Clear? Now let's start. Our earth is made up of rocks and soils. Rocks are made of minerals, and rocks and minerals are used for various purposes. Okay, जो अर्थ है वो किससे मेडअप हुई हुई है? रॉक्स एंड सॉइल से मेडअप है. एंड रॉक्स किससे बनती हैं? मिनरल्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल, वन एंड मोर देन वन जो मिनरल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से रॉक्स मेडअप होती हैं. एंड रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. बहुत सारे पर्पस के लिए हम उन्हें यूज करते हैं. ओके, सो अ मिनरल क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस है. And a rock may contain one or more minerals. Okay, and the type of rock depends on the quality, the quantity, and the arrangements of minerals in it. Okay, rock का जो type है वो किस पर depend करता है? It's depend on the quantity and the quality and the arrangement of the minerals in it. Clear? And according to their formation, rocks are divided into 3 groups, that is igneous, sedimentary, and metamorphic. Now it's activity time. Okay, so यहाँ पर आपको जो unscramble word है इन्हें हम scramble correct लिखेंगे. The Taj Mahal is, okay, the Taj Mahal is made up of marble. Okay, जो ताज महल है वो किससे made up है? Marble से. Okay, and the Red Fort is made up of रेड सैंडस्टोन. ओके, जो रेड फोर्ट है वो किससे मेड अप है? रेड सैंडस्टोन से. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. ओके, फॉर्मेशन के बेस पर हम रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. क्लियर? नाउ हियर इज 3 टाइप ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, sedimentary, and metamorphic. Now let's start. First type is igneous rocks. So igneous rocks are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. जो igneous rock हैं वो किससे made up होती हैं? जो hot molten rock means liquid. Okay, liquid या पिघली हुई जो rocks होती हैं वो गर्म होती हैं. ओके, ऐसी जो hot and molten rocks हैं उसके
उसकी कूलिंग एंड हार्डनिंग से फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक का, ओके। एंड द हॉट मॉल्टन रॉक्स फ्लोज आउट थ्रू अ वोल्केनो, ओके। एंड जो ये हॉट मॉल्टन रॉक्स हैं ये किसके किसके फ्लो आउट होते हैं, किसके थ्रू, वोल्केनिक थ्रू, ओके। वोल्केनो इज ए रप्चर और सडन ब्रेकिंग इन अर्थ क्रस्ट, ओके। अर्थ की क्रस्ट में जब सडन ब्रेकिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक रप्चर बन जाता है वहां पर, दैट इज कॉल्ड वोल्केनो, ओके। एंड इस वोल्केनो से ही हॉट जो मॉल्टन रॉक्स हैं वो फ्लो आउट होती हैं। हॉट मॉल्टन रॉक व्हेन प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा एंड व्हेन इट फ्लोज ऑन द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा, ओके। आप सभी इन दोनों वर्ड से अच्छे से आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपकी जो प्रीवियस क्लासेस ऑन में होगी। जब ये हॉट मोल्टन रॉक्स मींस जो रॉक्स हैं वो गर्म हैं एंड लिक्विड कंडीशन में है, ओके। देन उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये अर्थ के इनसाइड होती हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ओके। एंड जब वो वोल्केनो के थ्रू अर्थ की सरफेस पर फ्लो करती हैं देन हम इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ओके। आपने कभी मूवीज में या पिक्चर्स में कभी देखा होगा कि वोल्केनो में से, वोल्केनो जब बर्स्ट होता है, ओके, तो उसमें से इस तरह के जो गर्म, आपने देखा होगा रेड कलर का एकदम हॉट एंड मोल्टन कुछ लिक्विड फ्लो होता है ना, तो वो यही हॉट मोल्टन रॉक होती है, ओके। तो जब ये अर्थ पर फ्लो करती हैं अर्थ सरफेस पर तब हम इसे लावा कहते हैं, एंड जब ये इनसाइड द अर्थ होती हैं देन इट इज कॉल्ड मैग्मा, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और इन्हीं ये जो हॉट मोल्टन रॉक्स हैं इनकी कूलिंग से ये धीरे धीरे कूल डाउन होती हैं एंड क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ओके। देन किस टाइप की रॉक का फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक्स का, क्लियर। मैग्मा और लावा cools down and hardens to form igneous rock, ओके। जो मैग्मा या फिर जो लावा है वो कूल डाउन होकर हार्ड हो जाता है and it's form igneous rock. About 95% of the earth crust is made up of igneous rocks. Igneous rocks contain many minerals like mica and feldspar, okay. And जो igneous rock है अर्थ क्रस्ट का 95% अबाउट 95% जो है किससे मेडअप है, इग्नियस रॉक से। और इग्नियस जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे मिनरल्स कंटेन करती हैं बिकॉज वी ऑल नो कि जो रॉक्स हैं वो किससे मेडअप है, वन और मोर देन वन जो मिनरल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनती है, ओके। तो ये माइका और फेल्डस्पार लाइक जो मिनरल्स हैं उसको कंटेन करती हैं, क्लियर। So let's discuss about examples of igneous rocks. First one is granite. It is a very hard rock. It is formed by the slow cooling of magma below the earth's surface. It is rich in quartz, feldspar and mica. It comes in many colors and it is used for making kitchen counters, floors, etc. Okay. Granite is also a type of igneous rock and it is very हार्ड रॉक, ओके। अर्थ के बिलो या अर्थ की सरफेस में जो भी मैग्मा है उसके स्लो कूल डाउन प्रोसेस से जो ग्रेनाइट है उसका फॉर्मेशन होता है, ओके। एंड ग्रेनाइट में कौन कौन सी मिनरल्स हैं, इट इज रिच इन क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका, दीज आर टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ओके। तो ये इनसे रिच है, ये जो मिनरल्स हैं ये इसमें मोर देन इनफ अमाउंट में मिलती हैं एंड इट कम्स इन मैनी कलर। और जो ग्रेनाइट है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है एंड इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इट्स यूज फॉर मेकिंग किचन काउंटर एंड फ्लोर, ओके। किचन का जो काउंटर होता है, स्लैब होता है जिसपे हम वर्क करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी मदर्स हैं किचन में, दैट इज किचन काउंटर, ओके। तो किचन काउंटर के फॉर्मेशन में या फिर फ्लोर फॉर्मेशन में जो ग्रेनाइट है उसका यूज किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज pumice. It is a light colored igneous rock. It has many holes which are formed by the gases trapped in the lava at the time of its formation. It is lightweight and can float on water. It is used to polishing the floor and dentists use powder pumice for polishing our teeth, okay. So pumice is also a light colored igneous rock, okay. इसका जो कलर है वो क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है and it has many holes which are formed by gases trapped in the lava at the time of its formation, okay.
तो ये जो पमिस है इसमें बहुत सारे होल प्रेजेंट होते हैं। एंड होल क्यों होते हैं? बिकॉज जो लावा है जब ये हॉट कंडीशन में था, ओके, उस वक्त इसमें बहुत सारी जो गैसेस हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर ट्रैप हो गए, फंस गए, ओके, जिसकी वजह से ये इसमें बहुत सारे हमें क्या दिखाई देते हैं? होल्स दिखाई देते हैं, ओके, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था। ये बहुत ही लाइट वेट होती है एंड इजीली वाटर पर फ्लोट कर सकती है। एंड पमिस का यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग द फ्लोर, फ्लोर को पॉलिश करने में इसका यूज किया जाता है। एंड सेम लाइक दिस, जो डेंटिस्ट होते हैं, ओके, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, वो भी पाउडर्ड फॉर्म में जो पमिस है उसका यूज करते हैं टू पॉलिश योर टीथ, ओके, टीथ को पॉलिशिंग करने में, टीथ को शाइन करने में, बिकॉज टीथ थोड़े येलोइश हो जाते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है थोड़ा। सो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो टीथ को पॉलिश करने के लिए किसका यूज करते हैं? पमिस का यूज करते हैं, ओके, पाउडर्ड फॉर्म में जो पमिस आता है उसका यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज obsidian. It is shiny and smooth igneous rocks formed by quick cooling of lava. Okay, जो obsidian है ये भी type of igneous rock है and ये बहुत ही shiny और smooth type की rocks होती है। See in the picture, and it is formed by the quick cooling of lava. Okay, lava की quick cooling से obsidian जो rock है इसका formation होता है। It is used for making jewelry. Okay, because ये बहुत ही ज्यादा smooth है and shining है, इसलिए इसका जो use है ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कटिंग टूल्स, टूल्स को भी कट करने में इसका यूज किया जाता है। ओके, सी इन द पिक्चर, फर्स्ट वन इज ग्रेनाइट, ओके, ये सबसे ये हार्ड रॉक है, ओके, एंड इससे हम किचन काउंटर या फ्लोर फॉर्मेशन करते हैं एंड ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। सेकंड वन इज पमिस, ओके, पमिस में इस तरह से देखिए आपको होल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो गैसेस हैं, जो लावा का इस टाइप की जो रॉक है, पमिस का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, ओके, टाइम ऑफ फॉर्मेशन लावा में गैसेस ट्रैप हो जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से इसमें होल प्रेजेंट होते हैं। ओके, सी इन द पिक्चर, ये देखिए इस तरह से मार्केट में भी आपको ये पमिस इजीली अवेलेबल हो जाता है। लार्ज पीसेस ऑफ रबिंग ऑन द स्किन टू मेक इट सॉफ्टर, ओके, इस तरह के लार्ज पीसेस आपको मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप अपनी स्किन को भी, बॉडी पे, आपकी बॉडी पे भी आप इसे रब करके क्लीन करने में, स्किन को सॉफ्ट करने में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन, ओके, इट्स शाइनिंग एंड स्मूथ। Fourth one is basalt. It is formed by the cooling of lava on the earth's surface and it is dense and dark. It is used for constructing rocks. Okay, and next one is basalt है. It's also a type of igneous rock. ये भी जो earth की surface पर लावा है, ओके, वॉल्केनो से जो लावा फ्लो आउट होता है उसका, उससे होता है किसका फॉर्मेशन? बेसाल्ट का फॉर्मेशन, ओके, एंड ये बहुत ही डेंस और डार्क होती है एंड इसका यूज हम कहाँ करते हैं? रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, ओके, रोड कंस्ट्रक्शन में बेसाल्ट का यूज किया जाता है। क्लियर?